Good afternoon, children. Today we are going to discuss about the chapter The Raindrops, right? So, before starting the chapter, let's discuss about what do you mean by weather? Yes? So, weather क्या होता है? Right? So, weather means like मौसम, right? In Hindi we say मौसम. Like so weather can be hot, weather can be cold, weather can be rainy, right? So weather can be windy also. So there are different forms of weather, right? Now you can see here uh, what is given here. Rearrange these letters to find words related to weather, right? So you can see there are certain words given over here, right? And these are jumbled words, right? So what we need to do with these jumbled words, like हमें क्या करना है, इन जम्बल्ड वर्ड्स से हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है एंड दैट वर्ड हैज़ टू बी रिलेटेड टू वेदर. तो वो वर्ड ऐसा वर्ड फॉर्म करना है जो वर्ड वेदर से रिलेटेड होना चाहिए, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. यस, सी इन द फर्स्ट वन वी आर प्रोवाइडेड विद 3 लेटर्स. हमारे पास 3 लेटर्स है, G, F and O, right? So can you try yourself like what you can make with these 3 letters? इन 3 letters से आप क्या बना सकते हैं? Can you guess? Yes, right. See what we can do. We can do like first we write F, right? And second letter we write O, and at last we write G. So it becomes fog, right? So obviously fog is a word which is related to weather. Now can you tell me in which season do you see fog? Yes, in winter, right? Now let's discuss about this word now, or this jumbled word. Yes, NAIR. We are here provided with the 4 letters. Now what can we make with these 4 letters? Right, see, we can do one thing. We can write R in the first, and then A, and then E, and then Na. Yes, now it has become rain. Yes, and all you know, rain is a word related to weather, right? Now the same way, let's do this one here. Now we have 4 letters, right? Now can you think yourself what you can form or what you can make with these 4 letters? Yes, you are right. What we can make, first we start with S, then N, then O, and then W. So it has become snow, right? Snow पता है ना आपको? बर्फ़, जो सर्दियों में बर्फ़ गिरती है, जम्मू एंड कश्मीर में, शिमला में, स्नो, राइट? नाउ नेक्स्ट again we are provided with 4 letters. You can see, right? Now what we can do these 4 letters, to my mind coming is like we put W in starting, then E, then N, and then D, right? So now it has become wind, right? So we are done with this now. Like we have made 4 words with these jumbled letters. See, you can see fog, rain, snow and wind, right? So these are the 4 words which are related to weather, right? Now so today the chapter, yes, so now let's start with our chapter, the raindrops. Yes, so today let's start with the chapter now. So the first line of the chapter says, Farmer Seth had a large field of wheat.
देयर इज़ अ फार्मर इन द स्टोरी, राइट. फार्मर आपको पता है ना, फार्मर क्या होता है, किसान, राइट. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फार्मर, सेठ. यस, देयर इज़ अ फार्मर हुज नेम इज़ सेठ एंड ही हैड अ लार्ज फील्ड ऑफ व्हीट. इसके पास एक बड़ा सा खेत है जिसमें इसने क्या बोया हुआ है, व्हीट, गेहूँ, राइट. He weeded it carefully and prayed for it to rain every day, right? So he weeded it carefully. Weeded. Now, can you tell me what is the meaning of weeded? Yes, weeded means क्या होता है, देखो जैसे फार्मर सेठ है. फार्मर सेठ ने क्या किया, अपने फील्ड में गेहूं के प्लांट्स बो दिया, राइट. तो कुछ टाइम बाद जो है उसके प्लांट्स छोटे छोटे आने लगे, राइट. उसके बाद आप क्या देखते हो कि जो वीट प्लांट्स हैं, वीट प्लांट्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी ग्रो कर गए फील्ड में, राइट. तो जो एक्स्ट्रा प्लांट्स है वो हमें निकालने पड़ेंगे फील्ड से खोद करके. क्यों निकालना है, व्हाट इज़ द नीड टू रिमूव देम. ज़रूरत ये है कि जो एक्स्ट्रा प्लांट्स है वो हमारी जो भी हम वाटर सप्लाई करेंगे या जो भी हम फर्टिलाइजर्स डालेंगे हमारी फील्ड में, या जो फार्मर डालेगा वाटर सप्लाई करेगा या जो भी फर्टिलाइजर्स डालेगा वो, तो जो वाटर सप्लाई और फर्टिलाइजर्स है उसको क्या करेगा, उसको एक्स्ट्रा प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेगा, राइट. और जिसको हम देना चाहते हैं एक्चुअली में वीट प्लांट्स को, वो इस चीज़ को नहीं ले सकेंगे, राइट. सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स है उसको हम खेत से खोद कर बाहर फेंक देते हैं, राइट. सो दैट जो हम वाटर सप्लाई देंगे और जो हम फर्टिलाइजर्स देंगे वो क्या है, प्रॉपरली वीट प्लांट्स को मिलेगा. सो फार्मर ने क्या किया है, ही वीडेड इट केयरफुली, इसने वीडेड कर लिया, राइट. एंड प्रेड फॉर इट टू रेन एवरी डे. और प्रे करता है, वो हर दिन प्रे करता आ रहा है फॉर इट टू रेन एवरी डे, कि हर दिन बारिश हो. प्रेड फॉर इट रेन एवरी डे, हर दिन यही प्रे करता है कि बारिश हो जाए. ही वॉन्टेड टू सेल हिज व्हीट. तो ये क्या करना चाहता है, ये अपने व्हीट को बेचना चाहता है, राइट. इसलिए इसने व्हीट उगाया है. सो दैट हिज फैमिली कुड लिव ऑन दैट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, राइट. सो ही वॉन्टेड टू सेल हिज व्हीट. वो अपने व्हीट बेचना चाहता है, सो दैट, ताकि उसकी फैमिली, जो उससे पैसे मिलेंगे, मनी मिलेगा हमें, उससे उसका गुजारा हो सके साल भर के लिए, राइट, फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. हाउएवर, आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर मेनी months, he saw that the wheat had started to wither and droop. लेकिन आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर मेनी मंथ्स, बहुत महीनों तक काफ़ी हार्ड वर्क करता रहा वो. इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी क्या हुआ, ही सो दैट द व्हीट हैड स्टार्टेड टू विदर. उसका जो व्हीट था वो क्या होने लगा, विदर यानी ड्राई हो गया, सूखने लगा पानी के बिना. एंड ड्रोप, और वो नीचे की तरफ झुक गया. जो प्लांट्स थे वीट के वो सूख करके झुक गए, बेंड हो गए डाउनवर्ड्स. दिस वॉज बिकॉज देयर हैड बीन नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब ऐसा क्यों हुआ, जो वीट प्लांट्स थे वो क्यों सूख गए, क्यों बेंड हो गए. दिस वॉज बिकॉज देयर हैड बीन नो रेन, क्योंकि बारिश नहीं हुई बहुत लंबे टाइम से. ही बिगैन टू फियर, उसको डर लगने लगा, फियर हो रहा था, डर रहा था. क्या डर लगने लगा, दैट ऑल हिज हार्ड वर्क वुड बी वेस्टेड. उसको क्या डर था कि उसने जो हार्ड वर्क किया इतना सारा, वो सब वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा ऐसे ही. एंड ही वुड हैव नो व्हीट टू हार्वेस्ट. और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ही वुड हैव
नो वीट, उसके पास कोई वीट नहीं होगा, कोई गेहूँ नहीं होगा हार्वेस्ट करने के लिए। अब हार्वेस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्वेस्ट? हार्वेस्ट क्या होता है, जैसे फार्मर वीट बोता है तो धीरे धीरे वीट बड़ा होता है, फाइनल स्टेज पे जब पहुंचता है तो वो सूख करके ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि उसको काटना होता है। तो हार्वेस्ट का मतलब यही है कि उसको कट करना और उसको उसमें से ग्रेन्स को कलेक्ट करना। ठीक है। ही फेल्ट वेरी सैड, अब उसको बहुत ही सैड वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत दुख हो रहा था उसको। एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू द फील्ड। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह वो कहाँ जाता था, अपने फील्ड पे, अपने खेत में। लुक्ड एट द थर्स्टी व्हीट स्टॉक्स, और किसको देखता था, उसका जो वीट था, वीट के स्टॉक्स थे, उसको ऐसा लगता था कि वो बहुत प्यासे हैं, बहुत ही उनको प्यास लगी है, उनको क्या चाहिए, पानी चाहिए। एंड प्रेड फॉर इट टू रेन, और उसने प्रे किया कि बारिश हो जाए। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एज ही स्टूड लुकिंग अप एट द स्काई होपफुली। वन डे, एक दिन, ही स्टूड अप मतलब वो खड़ा था, लुकिंग अप कहाँ देख रहा था, लुकिंग अप एट द स्काई, स्काई की तरफ देख रहा था। होपफुली मतलब एक आशा थी, होप थी उसको कि शायद बारिश हो जाए। टू लिटिल रेन ड्रॉप्स, दो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स, जिसका नाम क्या था, पिट एंड पैट, सो हिम। दो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स हैं, पिट और पैट ने ऊपर से फार्मर को देखा। पिट सेड, सेड मीन्स बोली, पिट ने क्या बोली, पिट क्या बोली, लुक एट दैट फार्मर, फार्मर को देखो। आई फील वेरी सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ही वर्कड सो हार्ड, उसने बहुत मेहनत की है। टू ग्रो हिज वीट, अपने वीट को ग्रो करने के लिए। बट नाउ, पर अब क्या हुआ, इट्स ऑल ड्राइंग अप, सब कुछ सूख रहा है। आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। यस मी टू, हाँ मैं भी। सेड पैट, पैट ने कहा। बट वी आर ओनली टू लिटिल रेन ड्रॉप्स, लेकिन हम तो सिर्फ दो ही रेन ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी। वॉट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। जस्ट द टू ऑफ अस कांट वाटर अ बिग फील्ड, हम दो जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स हैं, उससे तो उसकी जो बिग फील्ड है, बड़ा सा खेत है उसका, उसको पानी नहीं दे सकते। राइट। सो चिल्ड्रन, लेट्स फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। राइट। जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है हमारा सेकेंड पेज, we will take that tomorrow. So for today, what you do, you just listen to my video and try to understand this, right? And like you do one time reading also from here to here, right? एक बार रीडिंग करेंगे आप अपने आप, और जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में, तो उसको आप बार बार प्रोनाउंस करके देखेंगे। राइट। सो thank you, children.